Bismillahirrahmanirrahim. It is class 11th, subject economics. Today our topic is measures of central tendency. Measures of central tendency. Measures of central tendency. First of all, arithmetic mean. Arithmetic mean, which is also known as or mean, is the number which is obtained by adding all values of the items of a series and dividing the total by number of items. Our topic is measures of central tendency. Here it is arithmetic mean or mean is the number which is obtained by adding all values of the items of a series and dividing the total by number of items. So we can say mean is equal to, or arithmetic mean is equal to, total value of items divided by number of items. Here two things should be noted. Number one is mean is obtained by total value of items. What is the total value of items? We have, first of all, we have to add the value of items, then it divide by number of items. अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास पॉकेट मनी ऑफ 8 students or say 8 students या 8 boys in the class, ये पॉकेट मनी है. हम मीन कैसे निकालेंगे? हमारे पास 8 स्टूडेंट्स है, उनके पास पॉकेट मनी है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. ये है 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 + 40. Here mean is equal to, now 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 + 40 is equal to, it will be equal to 180. Now what is the number? Number is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 items. Total value of items is equal to 180 divided by number of items. Number of items is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It is 180 divided by 8. It will be 22.5. 22.5. This is the mean, which is also known as arithmetic mean. और इसके लिए फॉर्मूला एक है, arithmetic mean is equal to x1 plus x2 plus x3
प्लस डैश डैश एक्स डिवाइड बाय एन, या हम ऐसे भी कहेंगे समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। समेशन ऑफ एक्स क्या है, अगर हम यही मिसाल ले लेंगे, समेशन ऑफ एक्स है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, it is equal to 180 divided by n. N is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Number of items 8. It is equal to 22.5. It will be our arithmetic mean or mean. Now here is types of arithmetic mean. There are two types. Two types of arithmetic mean. Number first is simple arithmetic mean. Number second is weighted arithmetic mean. First of all, we will take the simple arithmetic mean. Simple arithmetic mean, here we are having individual series. अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज में हम अर्थमेटिक मीन कैसे हासिल कर सकते हैं? बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड अगर हम ये कहेंगे पॉकेट अलाउंस ऑफ टेन स्टूडेंट्स, pocket allowance of 10 students is 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Using direct method हमारे पास अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन or total value of items divided by number of items. Total value of items divided by number of items. अब आप देखिए टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स क्या है, 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 40 प्लस 55, 50 प्लस 55 50 65. It is equal to 340 divided by number of items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Number है 10. It will be equal to 34. Now, average pocket money of students is 34. It is arithmetic mean is equal to 34. It is by use individual series by using direct method. इंडिविजुअल सीरीज बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ये है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब हमारे पास इफ देयर इज इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड इस वक्त हम करते हैं ये सिंपल अर्थमेटिक मीन यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। हम अर्थमेटिक मीन कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला इज अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइड बाय एन, और ये है अर्थमेटिक मीन। ए क्या है, एज्यूम्ड एवरेज, ए है एज्यूम्ड एवरेज, A is assumed average
A is assumed average. समेशन ऑफ D है, ये है सम ऑफ डिविएशंस, सम ऑफ डिविएशंस, n इज इक्वल टू नंबर, n इज इक्वल टू नंबर। अगर हमारे पास यही क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये है पॉकेट अलाउंस। यहाँ पर हम कैसे हासिल कर सकते हैं, बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड हम कैसे अर्थमेटिक मीन हासिल कर सकेंगे। अगर हम ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर है पॉकेट अलाउंस, ये है x, 15 20 30 22 25 18 40 50 55 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है नंबर इज इक्वल टू 10, ये है पॉकेट अलाउंस, ये है, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ये है x, पॉकेट अलाउंस मीन्स x 5 15 20 30 22 25 18 40 55 50 55 65। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हम डिविएशन कैसे हासिल कर सकते हैं। पहले हमें देखना है कि व्हाट इज़ द एज्यूम्ड एवरेज, व्हाट इज़ द एज्यूम्ड एवरेज। एज्यूम्ड एवरेज हम कैसे हासिल करेंगे। एज्यूम्ड एवरेज हासिल करने के लिए हमें, यहाँ पर मैं रफ लिखूँगा, एज्यूम्ड एवरेज के लिए ए के लिए हमें हाईएस्ट लिमिट प्लस लोवेस्ट लिमिट डिवाइड बाई 2, हाईएस्ट लिमिट प्लस लोवेस्ट लिमिट डिवाइड बाई 2। हाईएस्ट लिमिट यहाँ पर 65 है, प्लस लोवेस्ट लिमिट जो है 65, लोवेस्ट लिमिट इज़ 15 डिवाइड बाई 2, इट इज़ इक्वल टू 550, यह हो गया 80 डिवाइड बाई 2, इट इज़ इक्वल टू 40। 40 is assumed average, 40 is assumed average। यहाँ पर हम लिखेंगे deviation from assumed average, deviation from A, D is equal to x minus A, D इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। यहाँ पर हमारे पास A जो है दैट इज इक्वल टू 40, दैट इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पर हमें देखना है x क्या है, 15, पहले में 15 माइनस 40, 20 माइनस 40, 30 माइनस 40, 22 माइनस 40, 25 माइनस 40, 18 माइनस 40, 40 माइनस 40, 50 माइनस 40, 55 माइनस 40, 65 माइनस 40। अब यह देखते हैं हम ये डिविएशन हमें क्या मिली। यहाँ पर हमें मिला इट इज़ -25, 15 माइनस 40 इज इक्वल टू -25, -20
20 minus 40 minus 20 minus 10, 30 minus 40, 22 minus 40, ये है 22 minus 40, 15 minus 40, 20 minus 40, 30 minus 40, 22 minus 40, ये हो गया यहाँ पर 18, ये है 18 minus 18। फिर है 25 minus 40, 25 minus 40, ये है minus 15, 18 minus 40, ये है minus 22, 40 minus 40 is equal to 0, ये है फिर प्लस 50 minus 40 प्लस 10, 55 minus 40, ये भी हो गया प्लस 15, 65 minus 40, ये भी हो गया प्लस 25। अब आप देख लीजिए, ये माइनस वाले हैं यहाँ तक और ये प्लस वाले हैं यहाँ तक। अब जब हम इनका टोटल करते हैं 25 प्लस 20, 10, 18, 15, 22, 5, 8, 5, 13, ये किसके बराबर आ जाएगा? 0, यह आ गया 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 7 हो गया 20, 2 प्लस 2 हो गए 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 110 minus 110 और यह आ जाएगा प्लस 25 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 10, 10 प्लस 15 हो गया 25 प्लस 25 हो गया, ये हो गया 50 इज इक्वल टू 50। अब यहाँ देख लीजिए आप ये हमने देखा, ये है समेशन ऑफ डी। समेशन ऑफ डी किसके बराबर आ गया? -110 प्लस 50, ये आ जाएगा बराबर -60। अब ये हमारे पास फार्मूला क्या है? अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइड बाय एन। हमारे पास अर्थमेटिक मीन देखना है, ए क्या है? ए इज इक्वल टू 40 प्लस समेशन ऑफ डी -60 डिवाइड बाय एन, एन है 10। अब ये किसके बराबर आ जाएगा? अगर हम इसको माइनस करेंगे, ये डिवाइड करेंगे 10 - 6, यह आ जाएगा 40 - 6 इज इक्वल टू 34 ₹34 जो है ये है अर्थमेटिक मीन। ये है अर्थमेटिक मीन। जब हमने डायरेक्ट मेथड किया तो हमने यही क्वेश्चन लगाया, डायरेक्ट मेथड से हमें मिला था 34 पॉकेट अलाउंस, ये अर्थमेटिक मीन। अब जब हमने इनडायरेक्ट मेथड लगाया, यही क्वेश्चन हमने किया, यहाँ पर भी हमें 34 अर्थमेटिक मीन हासिल हुआ। इसके लिए आपको याद रखना है कि फार्मूला है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइड बाय एन। ए क्या है? एज्यूम्ड एवरेज है। ये है समेशन, डी है समेशन ऑफ डिविएशंस। पहले हमें लिखना है 1, 2, 3, 4, ये कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है। फिर इनका क्वेश्चन है ये पॉकेट अलाउंस 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड 65। डिविएशन हम कैसे हासिल कर सकते हैं? डिविएशन इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ए हमने कैसे हासिल किया? एज्यूम्ड एवरेज हमने ऐसे, हाईएस्ट लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, 65 प्लस 15, 65 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, ये है 80 डिवाइड बाई 2, ये है 40। फिर हमने डिविएशन हासिल की एक्स माइनस ए से। एक्स ये है 15 माइनस ए 40, 15 माइनस 40, 20 माइनस 40, 30 माइनस 40, 22 माइनस 40, 25 माइनस 40, 18 माइनस 40, 40 माइनस 40, 50 माइनस 40, 55 माइनस 40, 65 माइनस
40। ये हमें मिला यहाँ पर -25, -20, -10, -18, -15, -22, 0, फिर है +10, +15, +25। इनका प्लस जमा हमने किया माइनस वालों का अलग, ये है -110 और ये प्लस वाले हैं +50। समेशन ऑफ डी इज इक्वल टू -110 +50 इज इक्वल टू -60। अब यहाँ पर हमने फार्मूला लगाई अर्थमेटिक मीन a प्लस समेशन ऑफ d डिवाइड बाई n, 40 प्लस -60 डिवाइड बाई 10। अब इसको हमने डिवाइड किया, यहाँ पर हमें मिला -6, 40 - 6 is equal to 34. 34 is the arithmetic mean. And it is all for today. Thank you. Khuda Hafiz.